Ladies and gentlemen, esteemed guests and valued participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me immense pleasure to welcome you all to the annual meetup of Shadil IT Academy, a celebration of knowledge, achievement, and the boundless potential of IT professionals. I am Mohammad Usamabi, your host for this evening, and I'm honored to guide you through an event that reflects our collective growth, vision, and commitment to excellence. Allow me to introduce Shadil IT Academy, platform that has been empowering professionals and redefining learners' experience since 2017. Shadil IT Academy is not just a training institute. It's a gateway mastering the dynamic domains of multi-cloud and DevOps. Established in 2017, our mission is simple yet powerful: to empower professionals and enthusiasts worldwide with the skills and knowledge to thrive in the ever-evolving technology. As Pakistan's exclusive provider of Alibaba Group platform, Shakti IT Academy has cemented its position as a leader in cutting-edge technology. Our virtual platform ensures accessibility and convenience, connecting learners from all corners of the world, industry leaders and everyone. Let us begin with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. He who has created the whole universe and its supreme eternity. I would like to invite Muhammad bin Hamid for the recitation of the verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अभी मोहम्मद बिन महमूद किरत पढ़ रहे हैं मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगा प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और इस तरह का है कि आई एम ग्रेजुएटेड इन 2017 इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बताने का मकसद ये है कि टू गिवन इंस्पिरेशन टू अपकमिंग पीपल कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन किया बट मूविंग ऑन आई परस्यू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेकिन ड्यू टू कोविड सिचुएशन आउट हुई और जॉब सिक्योरिटी की वजह से आई नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स टेक्निकल सपोर्ट Then I worked in Geritech और Geritech में कुछ से काम करने के साथ साथ I joined Shadil IT Academy. तो Shadil IT Academy में मैं ऐसा AWS 3-in-1 मैंने कोर्स I hope मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है if not please do let me know. So I joined AWS 3-in-1 Shadil IT Academy course of Dash 36 which really helped me a lot to get into DevOps.
और अल्हम्दुलिल्लाह after the completion of the course मुझे ऑटोमेटिकली एक DevOps की जॉब मिल गई जो कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट का कैरियर था and thanks to the support of Sir Usman and obviously Sir Usman brother Sir Azhar who helped me a lot तो जिसकी वजह से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेक्निकल सपोर्ट काम कर रहा था तो कुछ टाइम बाद मुझे वहीं से DevOps की भी ऑफर आ गई Alhamdulillah, by the help of and guidance of Sir Usman, now I am also working as a senior DevOps engineer in one of the companies Gold Pentagon, and as well as I am working as an AWS trainer in Shady Academy. So really humble and thankful to Sir Usman, and also an example to each and every participant who is actually learning here and everyone who is trying to get into DevOps, so that the career is great. Just the thing that we have to do is just to focus, and this is a great platform that we can achieve everything. So moving on to the program, obviously we have very short time, so I would like to announce the owner of the company, Sir Usman, will take us to the journey through the incredible story of Shady Academy, our humble beginning, the groundbreaking partnership with Alibaba and Azure and everything. Please join me in giving a resounding round of applause as we welcome the man who has made all this possible. Ladies and gentlemen, the visionary, the mentor, and the leader, Sir Usman. अच्छा इन्होंने जो अपना इंट्रोडक्शन कराया है इस तरह के कई स्टूडेंट्स होंगे जो अपने इंट्रोडक्शन कराएंगे उसका मकसद ये है कि आप लोगों को पता लगे कि कितने डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं मुझे तो आप लोग पूरे साल सुनते ही रहते हैं ठीक है ना मेरी ऑडियंस के लिए चीज़ों की मैं 15 से 20 मिनट होगा और पिछले पूरे साल और जो लोग नए ज्वाइन किए उनको पिछले 7 साल की जर्नी एक शॉर्ट समरी में बताने की कोशिश करूँगा अच्छा जो लोग पीछे बैठे हैं वो जरा आगे आ जाए पीछे जो लोग पीछे बैठे थोड़ा आगे आ जाए इधर आए जो लास्ट में बैठे वो भी थोड़ा सा आगे की तरफ आए आगे प्रोग्राम का थोड़ा मजा तो आए समझने में और आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी इजीली अंडरस्टैंड हो सके उसके साथ साथ आज के इवेंट में हमने कई ऐसे स्पीकर्स को भी बुलाया हुआ है उसके साथ साथ जितने भी पूरे साल में बैचेस गुजरे उसमें कौन से रिवॉर्ड्स किस को मिलने हैं वो सब यहाँ रखा है और एक नेटवर्किंग इवेंट और सेशन के साथ रखा ताकि आप जो है वो मेंटर्स के साथ कनेक्ट हो सके और इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्ट होंगे आप मुझसे कुछ चीजें समझ सकें जो आपको सीखने में कई साल लग सकते अच्छा इनिशिएटिव जो है वो हमने स्टार्ट किया था 2017 में 2017 के नवंबर में स्टार्ट किया मेरा बैकग्राउंड जो है वो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का है 2012 में मैंने टेलीकॉम के टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और जब हम पढ़ के निकले तो हमें पता लगा हमारे सीनियर जो चढ़ के हुए हैं उससे एनटीए सीधे गए तो फिर हमने वहां से चेंज किया आईटी की तरफ आए नेटवर्किंग और फायरवॉल सॉल्यूशंस है मैंने 6 साल 6 जॉब्स की पाकिस्तान में जिसमें 4 इन्वेस्टमेंट और ऑफशोर मैंने काम किया और फिर 2018 में मैंने 2017 के आखिर में मैंने शेडवेल स्टार्ट किया स्टार्ट करने की वजह ये थी कि मुझे पढ़ना था क्लाउड 2 साल से काम करना था कुछ सीखना था ढूंढना शुरू किया पाकिस्तान में पता लगा कि AWS को कोई जानता नहीं जब नेट पर सर्च करते थे तो अमेरिकन बिल्डिंग सर्विस लिखा हुआ था ठीक है मैं लिटरली बता रहा हूँ AWS एक और भी है तो वो देख लगा तो उसको देखते हुए फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया अच्छा पढ़ाने की 2 वजूहत थी नंबर 1 मुझे ट्रेनिंग कराते हुए तकरीबन 20 साल हो गए मैं 2004 से ट्रेनिंग कर रहा हूँ मुख्तलिफ चीज़ों की ठीक है लेकिन उसके साथ साथ AWS मैंने 2017 से शुरू किया पहले कराची में शुरू किया और उसके बाद उसको पाकिस्तान से बाहर भी ले जाना शुरू किया मैंने इस वक्त राइट नाउ हम लोग 7 सालों में 4,500 IT प्रोफेशनल्स को 20 ममालिक में ट्रेन कर चुके हैं ये सिंगल क्लाउड नहीं है इसमें मल्टी क्लाउड भी शामिल है एक स्टार्टअप से किया मैंने देन फिर मार्केट के लिए हुई गूगल क्लाउड होना शुरू किया पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही था कि गूगल कोई क्लाउड भी देता है मुझे फायदा ये हुआ कि मैं यूएस की ऑफशोर कंपनीज में काम कर सकूं यूनिवर्सिटीज में से रिलायंस क्लाउड है क्लाउड रीच है और इंटरनेशनल इस तरह के बड़े इदारों के साथ मैंने काम किया तो वहाँ जो काम हम अभी कर रहे हैं वो काम हम पिछले 5 साल पहले शुरू कर चुके हैं तो मुझे वो प्लस पॉइंट गया मैंने वो चीज़ सीखी और मेरे लिए ये थी कि मैं जो चीज़ सीखता था उसको पढ़ा देता था आपके लिए अपने लिए भी तो मुझे फायदा होता था कि मैं उसको याद रखा अपने साथ ठीक है तो मुझे प्लस पॉइंट होता था स्टार्ट में अकेले किया था लेकिन मसला ये था कि अकेले कहाँ तक मैं लेके चलता तो फिर मैंने
जिनके अंदर पैशन है पढ़ाने का। अच्छा, एक चीज लोगों के माइंड में आती है कि पढ़ाने में जो है ना वो एक्सपोर्ट क्या बोलेंगे उसको, आपका स्कोप निकलेगा। मैं कई स्टूडेंट्स से मैंने कहा जो साथ पढ़ाते हैं मैंने सब स्कोप ये लोग क्या बोलेंगे ट्रेनर वगैरह आजकल। तो एक बात बताओ, ट्रेनर बनने का फायदा आपको क्या होता है? फाइनेंशियली अपनी जगह है, ट्रेनर बनने का फायदा ये है जो एक बात सीखा है ना वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मुझे आज को सोने को उठाते ना एक किसी चीज पूछने में उसको बता दूं, भले मैंने 2 साल तक काम नहीं किया, लेकिन एक बार आपको वो चीज पढ़ा दी ना पढ़ के आपको कभी नहीं मिलेगी। तो एक चीज कोशिश करें अगर आपको एक सामने कहीं से भी सीखना चाहे शेयर से चाहे कहीं और से, उसको किसी को पढ़ा के मुफ्त में पढ़ा, आपको वो चीज याद हो जाएगी। दूसरी चीज हमने ये की कि हमने उन स्टूडेंट्स को निकाला है, उनको ट्रेनर प्रोग्राम के थ्रू तैयार करना शुरू किया और 7 सालों में इसको कर दिया। मेरे पास 12 ट्रेनर्स बन चुके हैं। आपको जितने भी ट्रेनर्स पढ़ोगे आप देखोगे मैं ही पढ़ा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से जाऊं। ठीक है, तो हमने उन ट्रेनर्स को तैयार किया और उनको जो है मल्टीपल रोजगार किया कि वो जाके पढ़ाना शुरू करें, ना सिर्फ सिंगल क्लाउड बल्कि मल्टी क्लाउड। अभी आपको बहुत सारे ट्रेनर्स यहाँ नजर मिलेंगे। फिर 2019 में हमने गूगल क्लाउड शुरू किया, 2021 में फिर मैंने अलीबाबा शुरू किया। अच्छा, अलीबाबा की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अलीबाबा का मैं पाकिस्तान का अपने साउथ एशिया का वाहिद ट्रेडर हूं। ये उसकी वजह क्या है कि अलीबाबा के लिए पाकिस्तान जो है वो प्रिपेयर्ड है, ये उनका कहना है। ये पाकिस्तान में अलीबाबा का कोई ट्रेनिंग का उसको किसी ने, क्योंकि यहाँ जितनी भी कंपनीज काम कर रही है वो मेरे वास्ता या बिना वास्ता यूएस के साथ कनेक्टेड है, और जब आपकी लफ्ज यूएस आ जाता है तो उसमें अलीबाबा काम नहीं कर सकता। तो हमने फोकस किया सऊदी मार्केट को, हमने फोकस किया मिडिल ईस्ट मार्केट को, हमने फोकस किया साउथ एशिया मार्केट को। तो मैंने तकरीबन 2021 से 2024 तक अलीबाबा एज अ ऑफिशियल ट्रेनर पढ़ाया है, और मैंने तकरीबन कोई 1500 आईटी प्रोफेशनल्स को अलीबाबा में ट्रेन किया, जिसमें 700 सिर्फ 700 मलेशिया गवर्नमेंट के साथ ट्रेन किया मलेशिया के अंदर। उसकी वजह क्या है? इस वक्त अगर आप सऊदी मार्केट में जाएंगे तो सऊदी मार्केट में जो सबसे बड़ा क्लाउड है उस वक्त अलीबाबा क्लाउड है। मैंने देखा है कि 4 दिन या 5 दिन पहले जॉब पोस्ट की है उसके ऊपर, शायद आप लोगों की नजर पड़ी होगी कि आप लोग देख सकते हैं अलीबाबा की जॉब पोस्ट में उन्होंने एसी की मांग है। आप जानते हैं उसकी जॉब की उसकी सैलरी कितनी है? 40,000 मिनिमम बता रहा हूं। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 35 से 40,000 रियाल काम कर रहे हैं। मैं खुद कई कंपनीज के साथ $100 to $120 तक भी काम करके आया हूं, क्योंकि बंदे नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये चीजें स्टार्ट की और डिलीवर करना शुरू किया। अभी भी आप नेट पे सर्च करेंगे आपको शायद AWS और Azure मिल जाएगा। गूगल और अलीबाबा शेरदिल के अलावा कोई नहीं पढ़ा। उसकी वजह क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। और दूसरी बात, ट्रेनिंग के अंदर जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है वो है हैंड्स ऑन लैब। आप सारी दुनिया की लैब्स अपने लैपटॉप पर कर सकते हैं, क्लाउड की लैब्स जो है ना अपने लैपटॉप पर नहीं कर सकते जब तक आपके पीछे कार्ड नहीं लगा होगा बैंक का। मुझे अक्सर झटके लगते हैं जब मैं मंथ के आखिर में देखता हूँ $600 तो नहीं कट गया, $700 तो नहीं कट गया। क्या हुआ, किसी स्टूडेंट ने मशीन पर आके छोड़ दी थी, घूमा मैं रहा हूँ। ठीक है, तो वो दुख और वो जख्म भी सहने पड़ते हैं ट्रेनिंग करवाने के दौरान। लेकिन जब तक आप ये इन फेसेस से नहीं गुजरेंगे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसी को देखते हुए हमने क्या किया, हमने दुबई में अपनी कंपनी खोली 2021 में, क्योंकि वहां से पोटेंशियल था। फिर मैंने मिनिस्ट्रीज के साथ काम करना शुरू किया। हमारी एक दूसरी कंपनी शेरदिल क्लाउड, उसमें हम क्या करते हैं शेरदिल आईटी में पढ़ाते हैं, शेरदिल क्लाउड में अपने स्टूडेंट को हायर करके उनसे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। इस वक्त मेरे पास राइट नाउ तकरीबन 7 से 8 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ऑफिस में एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यहीं पर मौजूद है सब। ठीक है, उनको हमने मल्टी क्लाउड पर ट्रेनिंग किया और वो इस काबिल है कि दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलप करके और अल्टीमेटली हम डिलीवर करके दे देते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें आपको सिर्फ काम नहीं सिखाना, ट्रेनिंग नहीं करवानी, हमें काम भी सिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रेनिंग के साथ साथ आप लोगों को 6 महीने की इंटर्नशिप भी कराते हैं अपने ऑफिस में, जिसका नाम हमने रखा है को लर्निंग स्पेस। एक कोवर्किंग होता है, हमने को लर्निंग रखा है और ये पिछले साल तजर्बे से शुरू किया था। यार देखिए इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर को लर्निंग को लेके चल रहे हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप हमारे पास आते हो, ऑफिस जॉब चल रही होती है आपकी 3 से 4 घंटे लेते हैं, हम आपको AWS, Google, Azure, Alibaba, DevOps, Terraform, Kubernetes चाहिए सब कुछ 6-7 महीने में आपके हाथ से कराते हैं। उसमें से आधे लोग भाग जाते हैं क्योंकि वो इतना सख्ती सह नहीं सकते, बाकी आधे लोग होते हैं वो पॉलिश हो जाते हैं, या तो वो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री। अभी मेरे ऑफिस से 3 लोग अलीबाबा क्लाउड के ऑफिस में हैं सऊदी में, बिटवीन 20,000 रियाल्स टू 30,000 रियाल्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि कंपनीज की नजरें हमारे ऊपर होती है कि बंदे तैयार करें जिनके पास बंदे होंगे जो हमारे पास ज्वाइनर्स हैं। तो अब हमने पाकिस्तान से बाहर भी बंदे भेजने शुरू कर दिए अपने एम्प्लॉइज, अपने स्टूडेंट्स को जो कि तैयार हो चुके हैं। हमें पता है कि वो आगे जाके
ना किसी रखने शेड्यूल, ठीक है, बस ये आप उसकी एक वजह है ना ही AWS से मुझे कोई मोहब्बत है ना गूगल से, मेरे पास जहाँ से कस्टमर आ रहे हैं मैं वहाँ फोकस करूँ। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि आपने अगर मल्टी क्लाउड की तरफ आना है और यहाँ आने का मकसद ये है आपके लिए होगा किसी एक क्लाउड पे फोकस ना करें, चारों क्लाउड पे करें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका रिस्क एनालिसिस है AWS में लिखा है या गूगल में लिखा है। और ना ही ये बोले मेरा स्कोप नहीं है, ये बात मैं साथ-साथ से सुनता रहा हूँ मेरा स्कोप किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, इंटर मेरे पास 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं और अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर और आप लोग जो चीजें सीख चुके हैं उसको अपने साथ आपने टच में रखना है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप उन चीजों को भूल जाएंगे। उसके साथ साथ हमने ये किया कि हमने मुफ्त पार्टनरशिप की, कॉम्पिया का नाम सुना आपने? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन कॉम्पिया, उसके साथ हमने पार्टनर किया। AWS का पेपर अगर लेट्स से $150 है तो हमारे पास आपको तकरीबन $142 में पड़ता है। उसके साथ साथ बेहतर जो प्रोग्राम है वो है क्लाउड डिजाइनिंग। अभी मैंने रिसेंट एक कोर्स उसका कराया जिसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक है। एक क्लाउड डिजाइनिंग क्या चीज है, बहुत सारे लोग जिसमें हम लोग मजीद कोड बिल्ड करेंगे जिनको क्लाउड आता है। तो याद रखिएगा क्लाउड सिर्फ सीखना नहीं है, अगर आपने पैसे कमाने तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आप लोग पहले ही उसमें डर जाते हैं कि यार कोर्सेस या जो प्रोजेक्ट आए वो मेरे काबिल नहीं, बजाय इसके कि आप पूरा नीचे रख पाए। आप में से कितने लोग हैं जो ChatGPT यूज करते हैं? बहुत सारे लोग नहीं भी करते। मैं आपको बताऊं जो प्रोजेक्ट आप लोग 10 दिन में डिलीवर करते हो मैं 1 दिन में डिलीवर करता हूँ ChatGPT की मदद से। ChatGPT वो टूल है जिसकी मदद से आप पूरा अब कल की बात है, कल मेरे पास एक माइग्रेशन थी, मुझे अलीबाबा से रियल में माइग्रेशन करनी थी, ठीक है, मेरे क्लाइंट ने कहा मुझे स्टेप्स लिख दे, मैंने डॉक्यूमेंट भी पढ़ा, मैंने इससे ChatGPT को बोला कि मुझे वो प्रोसेस बना के दे, उसने प्रोसेस बनाया, मैंने ईमेल की 5 मिनट में उस तक पहुंच गए, प्रोजेक्ट सिक्योर हो गया। बताने का मकसद ये है कि जब तक आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज नहीं करोगे उस वक्त तक वहीं बैठे रहोगे। कितने आप से लोग होंगे जो डेस्कटॉप सपोर्ट में 10-10 साल 12 साल से बैठे हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो चेंज होना नहीं चाहते, वो कंफर्ट लाइफ में जी रहे। आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा यूजिंग न्यू स्किल्स और न्यू टेक्नोलॉजी। जब तक आप नहीं, अभी नई टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है? डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। हम लोग अभी कुछ 2 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, AI और एनालिटिक्स, जिसमें जनरेटिव AI का रोल कर रहे हैं। AWS की सर्विस है, कितने लोगों ने बेडरॉक का नाम सुना है? AWS बेडरॉक का नाम कितने लोगों ने सुना है? ये जनरेटिव AI की वो सर्विस है जिसमें ML के मॉडल्स मौजूद हैं और हम लोग ये ChatGPT और Python की मदद से उनके मॉडल्स को जनरेट करके, हालांकि हम डेवलपर नहीं है, सारी चीजें उसमें मौजूद है, इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप सिर्फ AWS से क्लाउड पर मशीन चला रहे हैं तो यकीन कर रहा हूं बैटरी क्लास का बच्चा बनने वाले हैं। आपने नई स्किल्स की तरफ मूव करना है, उसके लिए आपको AI, ML, डेटा साइंस और जनरेटिव AI को लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप 1 साल के बाद बाहर हो जाओगे। तो ChatGPT और इन सर्विसेज को सीखें। इसमें AWS का भी नया सर्टिफिकेशन निकाली है AI के नाम से, AI प्रैक्टिशनर, आप लोग देख लें, उसको सर्च करेंगे, फरवरी तक आएंगे $50 के आसपास। $10 में इसका कोर्स है, यूनिटी के ऊपर आइए, पाइथन की करें और जनरेटिव AI का कोर्स करके उसका AI का पेपर करें। AI और ML की जॉब्स का वर्ड है, अब ये जॉब्स आप होंगे, ChatGPT उन सारे काम करता जाता है। बताने का मकसद ये है कि अभी आपने कोर्स के अनुसार के 1 साल में अपस्किल हो जाएगा, फिर नई चीज आ जाएगी, तो आपने कंटिन्यूस अपने आप को जो है नई स्किल्स की तरफ ले जाना है ताकि आप उन चीजों को सीख सकें और मार्केट में बेरोजगार ना बैठे। बेरोजगार आप उस वक्त बैठेंगे जब आपकी स्किल आपसे बेहतर किसी और को आती होगी। और फिर लोग क्यों बेरोजगार नहीं है? आप लोग क्यों? इसकी वजह ये है कि आप लोग नई चीजें सीख नहीं रहे। 9 to 6 की जॉब में पूछे आप वहां से निकले और इन स्किल्स को सीखने की पहले बताइए। तो ये हमारी 7 साल की जर्नी है जो हमने की है। इस साल पिछले साल तकरीबन हमने ऑलमोस्ट कोई 7 या 8 से लोगों को ट्रेन किया है पूरे पाकिस्तान में। और इसके साथ इस साल का हमारा प्लान है कि हम डेटा साइंस और AI के ऊपर ज्यादा फोकस करें, अलाउ विद क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क डिजाइन, ये 4 डोमेन। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पास इसके कोर्सेज आउट शुरू है। इसके अलावा हमने लास्ट ईयर पाकिस्तान का पहला मल्टी क्लाउड ई-लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया, e-learning.share.org। उसमें जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज सेल्फ डिस्क्रिप्टिव जैसे मिलते हैं। उसमें अगर किसी को डिस्काउंट चाहिए हो या कोई फैसिलिटी अवेल करनी हो तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज ही आपको वो चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू for sharing your kind words and inspirational words. Moving on, हमारी next category है rising stars।
तो Rising Stars Awards distribution के I would like to request Abhikar, Faraz bhai, Mr. Faraz, please come on stage to give the award. Sarfan, if you can also join as well. And so success is not just about reaching your goals, it's about inspiring others along the way. तो इसी को ही मद्देनजर रखते हुए we have a category of rising stars. And the first one to be called out, I would like to announce Mr. Osama Mansoor from the DevOps 10th batch to come on stage and receive his award. Next, I would like to announce Mr. Blafin Hussain from Azure 19th batch to come on stage and receive his award. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जानते हैं मुझे कोई ख्याल से लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं जानते तो मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम फराज हुसैन शाफी है और मैं राइट नाउ वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विद सॉल्यूशंस में वर्किंग कर रहा हूँ और यहाँ के तमाम ग्लोबल सर्विसेज जितनी भी हैं विद सॉल्यूशंस की वो देख रहा हूँ मैं। अच्छा कुछ सबसे पहले तो मैं उस्मान और शेरदिल आईडी एकेडमी के हवाले से बताना चाहूँगा कि उस्मान का मेरा साथ तकरीबन 10 साल तकरीबन होने वाले और उस्मान जब से हमारे साथ है जब फर्स्ट टाइम उसने एक वेब होस्टिंग पैनल स्टार्ट किया था और ये काफ़ी तकरीबन 2011 की बात है तो जब ये उस टाइम के लिए स्टार्ट किया था और ये सारी चीजों का मकसद जो है जो यहाँ पर अभी चल रही है जो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह सारे चमकते चेहरे नजर आ रहे हैं तो उनका मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर खबर करने का कि सिर्फ शेरदिल आईडी एकेडमी नहीं बल्कि हमें साथ मिलके बहुत सारे मंजिलों को तय करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस्मान को मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह 7 साल का सफर उन्होंने तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह एयर बाय एयर ये जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियां दे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये सिर्फ ये नहीं कि आप अगर देखें उस्मान की कंप्लीट हिस्ट्री, कभी शायद मेरे ख्याल से मैं उस्मान से कहूँगा कि आप एक पूरा एक ब्लॉग टाइप का बनाएं, अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं। ये माशाल्लाह आप हाफिज़ कुरान भी हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें दीनी एतबार से हैं उनको भी वही रखा। माशाल्लाह इनका डेली बेसिस पे ये उसमें मौजूद होते हैं अपने मदरसे में, वहाँ पर मंजिल वगैरह सुनाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये इतना सारा वर्कलोड लेने के बावजूद भी दीन को भी उन्होंने साथ साथ चलाया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं देख रहा हूँ कि 7 साल कंप्लीट हो गए। ये वो टाइम है जब मैं फर्स्ट मीटअप में यहाँ पे मौजूद था, यहाँ नहीं जो जिस स्कूल में मीटअप था वहाँ पे, और आज 7 साल अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि ये टाइम कितनी जल्दी गुजरा हमें अंदाजा नहीं हुआ कि 7 साल कितनी तेजी से गुजर गए। मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मेरा ताल्लुक जो है टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा डिजाइनिंग से, डेटाबेस डेटा डिजाइनिंग से और तकरीबन 24 से 25 इयर्स मुझे इस फील्ड में हो गए काम करते हुए। मेरी पहली जॉब मुझे याद है कि 1999 में जब हम पास आउट हुए उससे मैट्रिक से, उसके बाद जैसे फ्री होते हैं तो अपने का यार कुछ कोर्सेज वगैरह करते हैं कंप्यूटर के, तो A+ कोर्स हार्डवेयर का स्टार्ट किया और जिस इंस्टीट्यूट में A+ का कोर्स कर रहे थे वहीं पर ही हमारे टीचर ने बोला कि यार आप जो है लैब इंचार्ज बन जाए और यहाँ पे लैब की सारी सर्विसेज है वो भी देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद मुख्तलिफ मवाक़ित चलते रहे। मेरी पहली जॉब जो एक्चुअल जॉब स्टार्ट हुई उसकी सैलरी अगर आपको मैं बताऊँ तो बड़ी अजीब सी बात है कि 800 रुपीज़ सैलरी थी और उस पे हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया। साथ साथ एजुकेशन भी चलती रही, सर्टिफिकेशन भी चलती रही और उसके साथ साथ जो है वो हम जॉब भी करते रहे और अपनी सारी एजुकेशनल जो चीजें थी वो सब उसके साथ चलती रही। अच्छा, उसके अलावा जो ये सारा सिलसिला चलता चलता इसके
इसके साथ साथ देखिए दीनी तालीम और दीन को भी साथ रखा। कोशिश ये करें कि उम्मा कराम की सोहबत में बैठे और दीन की तालीम हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चला जाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ हम दुनियावी चीज़ पे लग जाए। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ जो है वो दुनियावी चीज़ों में लग जाते हैं। तो मैं एक यहाँ से एक बात कहना चाहूँगा कि आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है उस्मान की कि माशाल्लाह उस्मान दीनी तालीम को, दीनी चीज़ों को इस तरह से लेके चल रहे हैं और एक अच्छी पोजीशन पे मौजूद है और अल्लाह ताला को तरक्कियां दे रहा है माशाल्लाह। तो इसी तरह मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे यहाँ पे लोग बैठी हुई है कि वो दीन को ना छोड़ें, दीन को भी साथ लेके चलें। इसके अलावा जब जॉब्स मेरी स्विच होती गई, मैं मुख्तलिफ जॉब मुख्तलिफ ज़ाहिर सी बात है कि आपके जब जो चल रहा होता है कि एजुकेशन भी आपने हासिल करनी है, कोर्सेज भी आपने करने मुख्तलिफ कंप्यूटर के, तो आपने पूरा अपना जो इनकम है वो बनानी होती है कि किस तरह से आपने जो है वो आगे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, कौन से कोर्सेज की क्या, तो उसके हिसाब से हमने स्विच करनी शुरू करी अपनी जॉब को। तो मेरी दूसरी जॉब जो थी वो एक टेक्सटाइल कंपनी में थी और वहाँ पर मैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर जॉब स्टार्ट करी। 3 साल वहाँ जॉब करने के बाद एक स्टार्टअप, उस जमाने में स्टार्टअप नहीं होते थे, उस जमाने में कंपनी लॉन्च हुई ऑटोमोबाइल की, शेवरले ऑटोमोटिव, शायद आपको याद है शेवरले की ब्रांड जो है GMC अमेरिका यहाँ पर आया था। तो वो हमने वहाँ पर मैंने ज्वाइन की एज अ नेटवर्क इंजीनियर और विदिन 6 मंथ वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे प्रमोट किया और मैं AVP वहाँ पे बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक और चीज़ जो मैं स्टार्ट की वो थी SAP SAP का उस टाइम पे और स्टार्ट हुआ था नया और SAP चलना शुरू हो गया था। तो वहाँ उस कंपनी ने अबेकस का नाम आपने सुना होगा, अबेकस उसी जिस बैंकों के शेवरले था उसी बैंकों से वो अबेकस स्टार्ट हुआ और आज माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो मैंने भी ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे दी, बेसिक पोजीशन दौर आया और ये कंपनी वेंडर की तरफ जाना शुरू हुई, ऑटोमोबाइल के बड़े दौर से गुजरे। वो एक टेंशन का दौर था कि अगर कंपनी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा और हालात बड़े खराब चल रहे थे, उनके हवाले से भी कुछ सियासी हालात भी बहुत खराब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो हमारी कोशिशों को देखा कि भाई कर रहे हैं कोशिश को, शायद उस वजह से और माँ बाप के दुआओं की वजह से मुझे, वैसे आपको मैं एक पर्सनल बात बताऊं कि मुझे कतर से जॉब ऑफर हुई उसी टाइम पे बेसिस एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन मैंने उसको ड्रॉप किया क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे वालिदैन थे। तो मैंने कहा ठीक है वहाँ मैं बाहर नहीं जा रहा, मुझे यही रहना है, पाकिस्तान में रह जाऊँ, प्लस पाकिस्तान को कुछ देना है। हम सब जो है वो पाकिस्तान से भागने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को कुछ देना चाहते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि हमें पाकिस्तान को भी कुछ देना है और वालिदैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उनकी मौजूदगी में मुझे जितना मिल रहा है, जो रिस्क अल्लाह ने मेरे लिए लिख दिया है वो मुझे मिलेगा। वो कभी भी किसी भी सूरत में मैं ऐसा नाम नहीं है कि नहीं मिल सकता। तो भारत को फिर मैंने वो जॉब करी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक जॉब ऑफर हुई और उस जमाने में वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कोई यूज नहीं कर रहा था और मैं आपको नाम ले देता हूँ कि मैंने स्टार्टअप में शामिल हुआ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी गैरिटेक एसोसिएट। तो गैरिटेक के स्टार्टअप में मैं 004 मेरा कोड है, मैं 14 बंदा था गैरिटेक का और वहाँ पे तकरीबन 5 प्रोडक्ट्स का लॉन्च करी। POP के जो तकरीबन है वो स्क्रैच से डिजाइन किया और वो और एक और 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने वहाँ पे लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज चीज़ें हम देख रहे हैं। जब पोजीशन बहुत ज़्यादा ऐसी रहती है कि आपके पास स्टार्ट किया था 4-5 लोगों से और जब मैंने लास्ट रिजाइन किया है तो वहाँ पे 4+ लोग मौजूद थे और 5 प्रोडक्ट्स की जो स्पेक से हमने स्टार्ट की और डेवलपमेंट टीम और उनकी टीम हमारी चल रही है। तो ये जो क्राइसिस आए नेक्सस ऑटोमोटिव बंद होने के उस जमाने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंशन क्रिएट हो गई और अगर मैं सोचता तो मैं वही चीज़ करता जैसे आजकल लोगों की कोशिश है कि यार जल्द से जल्द पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, पाकिस्तान से बाहर वाला एक नारा आजकल लग रहा है। तो कोशिश खैर यही होती है तो पाकिस्तान से बाहर आए, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान को हम लेके चले। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया और हम भी कुछ दें पाकिस्तान। तो आज यहाँ पे माशाल्लाह आप लोग सब बैठे हुए हैं। एक क्वेश्चन है मैं आप लोगों से करूंगा कि किसी को पता है कि 2047 क्या है?
Anyone? 2047. 2047. 100 years of Pakistan. 100 years of Pakistan हो जाएंगे 2047. 2047 का मीनिंग ये है कि जब 100 साल पाकिस्तान को हो जाएंगे तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो या तो वज़ीर आज़म बने हुए होंगे या किसी कंपनी को रन कर रहे होंगे और इस मुल्क की बात और संभाले हुए होंगे। अब शायद ना हो या अगर हुए तो इस पोजीशन में होंगे कि बस देख सकते हो कि आप लोगों को। तो भाई बात ये है कि वो जो 100 इयर्स का जो टाइम पूरा होगा तो क्या आप अभी जो लोग बैठे हुए यहाँ पे जो यूथ बैठी हुई है ये सोच सकती है कि हम उसमें उस वक्त क्या देखेंगे पाकिस्तान में, हम क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए, या हम यही सोचेंगे कि हम चले जाए यहाँ। तो मैं थोड़ा सा इस चीज की बात करना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान को जो है वो बहुत ऑफर्स मिलती है कि आप बाहर चले जाओ बाहर बहुत कमाने के जरिए, लेकिन हमें पाकिस्तान को भी देखना है और पाकिस्तान को सही राह पर लेके आना। अभी अगर आप देखें तो सऊदीया में विजन चल रहा है 2030, क्या हमें से किसी ने पाकिस्तान के लिए कोई विजन बनाया है? वो चले बड़े लोगों ने बनाया वो 2030 की एक गवर्नमेंट बना रही है, क्या मेरा अपना कोई विजन है? जो अभी थोड़ी देर पहले उस्मान बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात कि हमने टेक्नोलॉजी को देख लिया, क्लाउड माशाल्लाह और मल्टी क्लाउड यहाँ चल रहा है, इसके अलावा बेशुमार टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपके पास आती जा रही है। डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजीज जो है वो तब्दील हो रही है, आपकी आईटी में डेली बेसिस पे तब्दीली आ रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप ये समझे कि यार आज मैं यहाँ जो उस्मान ने कहा कि डेस्कटॉप सपोर्ट पे जो बंदा है वो कहते हैं यार अगले 10 साल तक भी मैं डेस्कटॉप सपोर्ट में बैठा रहूँगा तो सही, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोग सब सीसाइड जाते हैं और अगर आप सीसाइड जाए तो अगर आप साहिल पे खड़े हैं तो आपको अगर लहरें आके टकरा रही है तो कुछ देर बाद आपको ये फील होना शुरू होगा कि मैं जमीन में धंस रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं धंस जाऊंगा ये लहर मुझे लेके चली जाएगी। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जब आप पोजीशन चेंज करते हैं तो इट्स मीन कि आप ट्रांसफॉर्म हैं। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप या तो धंस जाएंगे या लहर आपको ले जाएगी। तो ये चीज हम सब ने करनी है, जितनी यूथ यहाँ बैठी है हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। आज से कई साल पहले कोडिंग नोकिया की भी आपको पोजीशन पता है कि कहाँ है, तो हमें अपने अंदर तब्दीली लानी है और दोनों तरफ से लानी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं अपने दिमाग को भी पॉजिटिव वे में सर्व करना है। यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि अगर उस्मान जो शेयर राइटिंग एकेडमी चला रहे हैं माशाल्लाह, अगर ये उस टाइम पे ये सोच लेते हैं कि यार ठीक है ये जॉब मिल रही है, बेहतरीन जॉब है, जबरदस्त है, पैसे आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तो शायद आप सब यहाँ थे। ठीक है, इन्होंने एफर्ट दिया, हार्ड वर्किंग, ठीक है, डेडिकेशन से इन्होंने काम किया और उन्होंने सोचा पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी सोचा। अभी की डिबेट मैं यही सुन रहा था कि इन्होंने कहा पाकिस्तान में AWS का कहीं नजर ही नहीं आता था कि पाकिस्तान में कोई ट्रेनर है या कोई, तो माशाल्लाह इन्होंने कोई विजन रखा और ये खुद भी यहाँ पर मौजूद होकर चीजों पे काम कर रहे हैं। तो मेरा ये सब लोगों से एक इल्तिमास है कि कोशिश कीजिए कि जितने भी यहाँ पर यूथ है वो अपनी जो एम है उसको सेट करें। एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक आप सबको पता होगा कि वो होता है कि जब हम आपने देखा होगा कि जब कोई कार हमें पसंद आती है और परचेज करने की बात करते हैं तो सड़कों में वही चलती नजर आने लगती है, जबकि वो उससे पहले भी वो मौजूद होती है, लेकिन वो अब क्यों नजर आएगी? क्योंकि हमारे दिमाग ने उस चीज को सोचना शुरू कर दिया और एक वक्त आता है कि वो हम परचेज कर लेते हैं। तो यही चीजें कि हम अपनी एक लाइफ का एम बनाएं, उसका अट्रैक्शन सेट कर लें, यार हमें ये काम करना है, हमें CTO बनना है, हमें CEO बनना है, कंपनी चलानी है, रन करनी है। अच्छा, और एक वादा मेरे ख्याल से आप लोग अगर चाहें तो मैं एक वादा लेना चाहूंगा कि भाई हर बंदा कम से कम 8 बंदों को ट्रेन करेगा। जितने यहाँ ट्रेन हो रहे हैं शेयर राइटिंग एकेडमी में, तो कम से कम 8 बंदा अपने साथ तैयार करेगा। अगर हम ये करना शुरू कर दें तो आज से 8 साल बाद हम किस पोजीशन में होंगे? हमारे साथ यहाँ पर अभी 1500 या 700 लोग ट्रेन हुए, अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें तो कहाँ पर होंगे?
वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हम सब कुछ नहीं होगी कि मफहूम है उसमें कि आखिरी दौर में फितने इतनी तेजी से चीज को सोचते। मैं खुद अपनी बात करूँ कि 10 साल पहले इस हदीस को सुन के और मैं सोचना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कैसे होगा, और हमें वो फितने हमारे साथ आ रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव यूज करें। अच्छा, और ये और मैं आपको दिया डेटा में मैंने तकरीबन अच्छा खासा टाइम हुआ, 8 साल लगे टेक में दिए। और वहाँ पर जब स्टार्ट किया हमने तो 3 सर्वर्स और 40 लोगों से 40 क्लाइंट से मैंने स्टार्ट किया। तो जिस दिन मैंने रिजाइन किया है उस दिन तकरीबन 800 प्लस सर्वर लाइव थे वर्ल्ड वाइड, और 26 लाख के करीब क्लाइंट हमारे एक्टिव क्लाइंट थे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि पूरी दुनिया में हमारे पास सर्वर मौजूद है। इसी तरह फिर उसके बाद मुख्तलिफ लर्निंग मेरी जिंदगी टेक्नोस दिया, टेक्नोस में डेटा सेंटर हुआ। एक और चीज़ जो शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग अभी बिल्डिंग में हो अपनी इसके करियर के, होता ही है कि मैं अपना बताऊँ आपको, मैं जब गैलेटेक से टेक्नोस गया तो टेक्नोस में जो आईटी टीम है इसी से काम होगा, इसी की मेंटरशिप करूँगा और इनको मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही लोगों में से बेशुमार लोग थे, 4-5 टीम के मेंबर्स थे, उनमें कोई सीटीओ है किसी कंपनी का, कोई अपनी कंपनी रन कर रहा है, कोई जर्मनी या कनाडा को सर्विसेज दे रहा है। और उस कंपनी में ट्रांसफर में रहते हुए हमने 3 बड़े मेजर क्लाइंट जिसमें कोका कोला, नासा और नेशनल ज्योग्राफिक, इनको हमने और 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। जो एक छोटी 5 लोगों की टीम थी उससे हमने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, डेवऑप्स डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट। तो ये वो चीजें हैं कि उन्हीं लोगों से, जिन लोगों को फेलियर दे दिया गया था, उन्हीं लोगों से चीजों को चलाया गया। पाकिस्तान की हो चाहे दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, यूएस, तो वो सारा जो है वो मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो बात हुई थी, अब एआई इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी गई और एक सर्विसेज अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, सकते हैं इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका सीआरएम सर्विसेज है, ठीक है, और इसके अलावा हमारा फ्यूजन सर्विसेज है जो कि जिसमें जेनेटिव एआई इंप्लीमेंट किया है। और जेनेटिव एआई काम ये कर रहा है कि जैसे कि आपको पता होगा कि बिजनेस सोल्यूशंस टोटली फिनटेक कंपनी है, और ये जेनेटिव एआई से हम प्रोवाइड ये कर रहे हैं कि जितने भी क्लाइंट हैं हम बहुत सारे सर्विसेज से कनेक्टेड है, लाइक ये बन नहीं आपका मास्टर कार्ड इंटरनेशनली भी हमारे पास बहुत सारे। तो जब हमारा डेटा इतना है तो उस डेटा को हमने बुकिंग करना शुरू कर दिया है। कर रहा है कि एग्जांपल देता हूं कि आपका नाम क्या है? उसामा के बैंक अकाउंट में कोई मसला है और ये काफी टाइम से कॉल कर रहे हैं बैंक को, और फिर उसके बाद आखिरकार अपने ब्रांच जाते हैं और ब्रांच मैनेजर से मिलना चाहते हैं। तो हमारा सिस्टम ये करता है कि ब्रांच मैनेजर को एक सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि जनरेटिव एआई है। तो आपको पता चलेगा कि उसामा अगर यहाँ आए तो क्यों आए, तो आपको उसका जो हमारी जनरेटिव एआई वॉइस सिस्टम है वो ये बताएगा कि ये 6 मंथ का प्रॉब्लम ये था, ये मसले थे, ये चीज में प्रॉब्लम आई है और इनको ये सपोर्ट नहीं मिली, और वो सजेस्ट भी करेगा कि इनको सपोर्ट देनी क्या है। ये जनरेटिव एआई है। तो जब उसामा से मैनेजर मिलने आएंगे तो मैनेजर इस स्टाइल से बात करेंगे कि उसामा में आपके ग्रुप में बराबर में चाहिए, तो उसका एटीट्यूड ही डिफरेंट होगा। तो ये वो चीजें हैं जो एआई डॉक्टर की तरफ हम जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंटेशन की है। तो तो बस ये कहना चाहूँगा कि उसामा के सवाल जो है उनके हवाले से बस कुछ बातें मैं करूँगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी उस्मान की तरफ जो है वो लेके जाता हूँ कि इनसे आप सीखें और इनकी कंपनी को ज्वाइन करें, और कोशिश ये करें कि जितना भी उनके साथ चीज़ें चल रही हैं उनको लेके चलें। और वही बात मेरे हर स्टूडेंट को मैं यही बात कहता हूँ कि यार एक स्टूडेंट अपने साथ 8 स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, और अगर हम ये करेंगे तो हम एज अ नेशन और अपनी इंडस्ट्री में बहुत जो है वो आगे जा सकते हैं। हमें इंडिया का मुकाबला नहीं करना, इंडिया से आगे निकलना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अंदर क्रिकेट से आता है। थैंक यू वेरी मच।
Very knowledgeable and very motivated speech from you, and I witness that inshallah I will be doing the same thing, and at least 8 से 10 लोगों का हम inshallah इसको follow करेंगे. So moving on to the program, अब हमारे पास कुछ prizes हैं जो कि हमें distribute करने हैं for the career growth multi-cloud batch. So I would request Usman to come on stage and to distribute the prizes. So please come on stage and to give awards to the students of career growth. So the first one, I would request Altamash Ansari from the 6th batch to please come on stage and collect your certificates. जिनको नहीं पता मैं तो बता देता हूँ कैरियर ग्रोथ प्रोग्राम जो है हमारा एक 6 महीने का मल्टी क्लास प्रोग्राम है जिसमें हम AWS, Google और Azure तीनों पढ़ाते हैं. उस पर्टिकुलर बैच में से एक स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल टॉपर होता है और ये जितनी भी शीट्स आपके जितने भी स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं वो है जो हर बैच में से एक वैसे स्टार्ट कर सेलेक्ट किया. I would request Salman Hamad Reis. Let's hear a big round of applause for Hamad Reis. Done it. Thank you. Thank you. Moving on to the program, so one of the greatest measures of success is when your students become leader. Shady IT Academy had the privilege of nurturing talents who are now shaping the futures as trainers. Let's first hear from Mr. Bashir, who will share his insights on DevOps. Please give a warm welcome to Sir Mr. Bashir. Yes, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. अच्छा, बशीर परेशान हम काफी सारे लोग जानते हैं और उम्मीद है आपके पास जाएंगे. आज देखिए DevOps के बारे में 15 मिनट में क्या 15 घंटों में बताना तो बहुत मुश्किल है. बट मैं एक कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी सोच बनाऊँ. तो आई होप कि इससे काफी हवा हो. ठीक है, हम सब काफी सारे वीजा के शौकीन हैं. ठीक है, जहाँ वीजा अच्छा मिलता है वहाँ टाइम बहुत लगता है और जहाँ पर टाइम नहीं लगता वहाँ वीजा अच्छा नहीं मिलता. यह वहाँ का मसला होता है. ठीक है ना. अब एक कंपनी आती है लेट्स सपोज ABC पिज़्ज़ा के नाम से. उसने कहा कि हम पिज़्ज़ा लेना तो 25 मिनट में डिलीवर करेंगे. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अप्रोच चेंज की नॉर्मल पिज़्ज़ा वालों से कि भाई आप ऑर्डर दें और मोबाइल या एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर और हम डिलीवर करेंगे विदिन 25 मिनट्स. अब कुछ तो चेंज करना है. अब अमाउंट वगैरह में उन्होंने अप्रोच क्या चेंज की, उन्होंने अपने पूरे ऑपरेशन को अपने पूरे टास्क में डिवाइड कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में. लेट्स सपोज उन्होंने कहा एप्लीकेशन पे जैसी रिक्वेस्ट आएगी ना तो वो रिक्वेस्ट हमारे एक सर्टेन जगह पर सबमिट होगी और वहां पर पिज़्ज़ा बेक होगा सारा. फिर कुछ पार्ट बना के जो डिलीवर करेगा, कुछ पार्ट है जो कस्टमर से फीडबैक देगा और फाइनेंस वगैरह को देगा. और साथ में इन सब जो जगह जगह पर एक सर्विस दी है, लोकेशन दी है, और वो लोकेशन ज़्यादा उनकी अपनी नहीं है, उन्होंने रेंट आउट की हुई है या कुछ लोकेशन ऐसी है जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दी हुई है मंथली बेसिस पर या आर्ली बेसिस पर. अब इस लॉजिक का फायदा क्या हुआ, उनका काम इसलिए हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई और ज़्यादा प्रोडक्शन और आपकी रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ. अब इस पूरी स्टोरी को थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ, दोबारा सुनाता हूँ स्टोरी पे और इसको हम ले चलते हैं किसी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोई एप्लीकेशन पे या कोई मोबाइल गेम पे. पहले अप्रोच होती थी कि एक सॉफ्टवेयर है वो सब काम कर रहा है तो वो स्लो होगा, उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी. फिर हम चले गए माइक्रो सर्विसेज, हमने डिवाइड कर दिया. जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि जस्ट थोड़ा स्टोरी बेस का. लेकिन उसने क्या किया, हमारी एप्लीकेशन को छोटे हिस्सों में तोड़ दिया. तो अब हर जो पार्ट है वो एक सर्टेन काम कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है तो उसकी डिपेंडेंसी भी बहुत कम होगी. जब ये सब मिल जाएंगे, जिस तरह कोई भी काम आपको असाइन करता है होटल में तो 5 लोग डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये असाइनमेंट है, ये 5 बंदे करेंगे और उसको फिर हम आपस में कंपाइल कर लेंगे और चलेंगे. ठीक है, ज्यादा देते हैं हर बंदा पूरा असाइनमेंट खुद से करे. तो यही अप्रोच होती है माइक्रो सर्विसेज की फॉर्म.
अब इसमें आप सोच सकते हैं कि माइक्रो से क्या मीनिंग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है सोचने के। सो माइक्रो सर्विसेज कंट्रोल कौन करता है, या माइक्रो सर्विसेज चलते किस पे, कंटेनर में चलते हैं। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सर्वर्स की बात की, वो एक बिग जायंट मैकेनिज्म है, उसके अंदर हजारों लाखों माइक्रो सर्विसेज बनते हैं। आप समझ सकते हैं कि माइक्रो सर्विसेज एक स्मॉल कंप्यूटिंग रिसोर्स, अब जहां भी कंप्यूटिंग रिसोर्स की बात आती है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी करना है, उसको चलाना भी है, उसको स्केल अप भी करना है, उसकी एक्सपेंशन भी देखनी है एंड डाउन स्केलिंग भी करनी है। आप कह सकते हैं पूरी लाइफ साइकिल को मैनेज करना, तो वहां पर आता है कुबरनेटिस। अब देखिए सारी बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ टेक्निकल जाके बता रहा हूँ, कुछ भी काम आता है। जाहिर बात है ये जो आता है ना कि 0 to 0 in 2 months, तो वो S से Z के सफर ही होता है, बीच में कुछ नहीं होता। It takes time, everything takes time। आप अभी जहाँ पर है, let's suppose अगर हम, तो हम एक certain टाइम से पहुंचे, एक एफर्ट से पहुंचे, एक मेहनत से, और अगर भी उसकी जरूरत करना जो करें आप, वो जरूरत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। सो कमिंग बैक टू माइक्रो सर्विसेज, जब बहुत सारे कंटेनर हो जाएंगे, बहुत सारों से क्या हुआ है, लाखों करोड़, तो वहां पर एक कुबरनेटिस आएगा, एक ऐसा इंजन आएगा जो कि इन सबको मैनेज करेगा। ठीक हो गया। सो और ये प्रोसेस ऐसा है कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा। इट्स नॉट लाइक एक दफा आ गया। मुझे आप बताएं कोई भी एक वेबसाइट का नाम, ये कोई एप्लीकेशन का नाम जो आपने आज से 1 साल पहले यूज की हो और आज यूज कर रहे हो, वो सेम नहीं, ऐसे कोई अगर होगी तो वो डायल है, बिकॉज जब तक चेंज नहीं होगा ना चीज। फेसबुक को देख ले या व्हाट्सएप को देख ले, वो हर 2 महीने बाद कोई नया फीचर लेकर आ रहा है, कोई नया मतलब कहते हैं सिस्टम लेकर आ रहा है, या फिर पीछे बैकग्राउंड में काफी काम चल रहा हो, तो डिप्लॉयमेंट या आप कह लें कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू थिंग्स वो आती रहती है, कंटीन्यूअस प्रोसेस चलता है, साथ में आपको वो भी लेके चलते। अब डिफरेंट पार्ट्स को अगर मिला लेते हैं इस पूरी जर्नी बात करना। अच्छा एक चीज है अक्सर आती है हमारे, क्योंकि डेवऑप्स का ताल्लुक सिर्फ आईटी से, मैं तो आईटी इंजीनियर नहीं हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं, मेरा क्या काम है। बट जिस तरह आज से 25-30 साल की पीएमपी होता था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हर जगह डिफरेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट चाहे फिनटेक का हो, चाहे कोई फार्मास्यूटिकल हो, कोई प्रोजेक्ट है, उसमें वहां पर आपको मैनेज करना। डेवऑप्स इज द कॉमन, इवन आईटी वर्ल्ड में, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में, इवन टेलीकॉम की बात की 5G एडवांस के पीछे डेवऑप्स सब कंटेनराइज्ड एनवायरनमेंट है, पूरा पीछे कुबरनेटिस चल रहा है। अब जहां पर शायद कोई नाम आपको ना सुनने मिले, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा कुबरनेटिस है। तो अगर मैं बोलूं आज से 10 साल पहले एक बंदा जो टेलीकॉम में काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि यार आईपी क्या होती है, अगर वो रन साइड पर है या एक्सेस साइड पर है या कंटेनर क्या होता है, बट नाउ दे नीड्स इट। आपकी रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। और अगेन बात वही नॉलेज की ना, एक वक्त तक आप बोलते थे कि आपने एक चीज एक्सेप्ट कर, अब आपको हर चीज एआई की बात की, एमएल की बात, अब जरूरी नहीं कि आप एमएल में बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंचे, लेकिन आपको सब्सिडी नॉलेज चाहिए। और एक बड़ी अजीब सी बात वैसे कि एक वक्त तक मैं टीचर पढ़ाता था, कुछ पढ़ रहे थे, अब ऐसा नहीं। अच्छा बहुत सारे लोग कुछ टीचिंग करते हैं, शायद बुरा ना, हम तो चलो पैशन के तौर पर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट आप सवाल करते हैं, पहले बोलते सर इसका मकसद तो ये था, मैंने तो ये देखा था, चाहे वो सर्टिफिकेट देख रहा हो, चाहे वो किसी पोस्टर करके बात कर रहा हो। अब आपको एक स्टूडेंट को गाइड करना, या फिर आपको कोई ऐसी चीज देनी है वो घर जाए तो सोचे कि मैंने ये बात सुनी थी, आज मैंने मुझे ये चीज बताई थी, मैं बाहर जाके सोचूंगा। 24/7 वाली बात है, मैं लिटरली आया था, मुझे नहीं आइडिया था, मैं कोई प्रोटोकॉल है, अब 802 पे चले गया, तो मैंने कहा शायद प्रोटोकॉल नंबर है, मैं इसका या कोई अलग से नंबर, बट उन्होंने तोड़ कर बोला 2047, it's 100 years celebration. So the good teacher is one who give you something to think about. ठीक है, क्लास में आपने पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आप हर चीज पढ़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का इतना फ्लो है, मुझे आज भी याद है 2005 की बात है, आप किसी से बात करते हैं, सर हम लैब में लाइब्रेरी में जाते हैं, आधा घंटा लगता है कार्ड ढूंढने में, और जब कार्ड देते लाइब्रेरी को तो देखते हैं, बोलते हैं ये बुक तो इशू, ठीक है ना। अब आप 5 सेकंड में आपको ए से लेकर डी तक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो गया,
कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई कि आपको कैटेगराइज करना है किस इन्फॉर्मेशन को मुझे पिक करना है और किस बात पर मुझे जाना है। ठीक है ना, अगर मुझे मैं बोलूं यहाँ से मुझे जाना है मेरे टाउन, मैं कौन सा बात है यहाँ से लगा जाऊँ सड़क जाऊँ या यहाँ से गुजर जाऊँ, तो बेस्ट पार्ट मुझे चूज करना और वो बेस्ट पार्ट ऑप्टिमम भी हो, वो बेस्ट पार्ट किसी से मेंटोर टीचर भी रहेगा। आजकल वर्ड कॉर्पोरेट टीचर यूज भी नहीं करते, वो मेंटोर या फैसिलिटेटर बोलते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में नहीं बोलते कि आज की ट्रेनिंग जो है वो अहमद साहब करेंगे, तो आज के फैसिलिटेटर जो है वो अहमद साहब, बिकॉज he will be facilitating you during the session or after the session as well, और आपको कोई चीज को देखने सीखने के लिए और सोचने के लिए। सो जितनी भी मतलब बात मैंने की डेवॉप्स के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में कॉन्सेप्ट, इसमें कोई क्वेश्चन कोई या इस बात से आप इख्तिलाफ करते हैं या इस बात को चीज कहना कि और वेलकम टू आस्क, और जो है सपोर्ट फ्रॉम माय साइड और इंटरेस्टेड फ्रॉम तो बेसिक चीजें हैं जो ध्यान में मेरे। Thank you for inviting me. Thank you. Thank you so much, Sir Rashid, for your kind words. Now I would like to invite Ms. Madhya, who will speak about the AI revolution, transform your future with Shady Light Academy. A huge round of applause for Ms. Madhya, please. University. I have transformed my discipline or domain from mathematics to artificial intelligence. Just to transform my career. Okay. Today I'm talking about something that is changing the world. Not just changing the world, but it's redefining the world. I'm talking about artificial intelligence, which is a game changer of the 21st century. Imagine करिए कि जहाँ पे एक ऐसी दुनिया जहाँ में कार्स हैं वो सेल्फ ड्रिवन हो, या फिर डॉक्टर जो हैं वो कोई भी डिजीज जो है वो डायग्नोस करें अनपैरेलल्ड एक्यूरेसी, और इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसे ऑप्टिमाइज हुई हैं जैसे पहले कभी नहीं। सो ये सारी जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो अभी हमने जिसकी बात की, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड कोई आगे आने वाले फ्यूचर में नहीं है, ये इस वक्त मौजूद है यहाँ। Like AI is doing all of these things. AI is doing all of these things, and let's talk about something that AI जो है वो AI is transforming the careers. Like कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई भी डोमेन हो, हम AI के थ्रू AI उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। लाइक कोई भी टास्क हो, लाइक मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात करती हूँ जो मैंने मास्टर्स में किए हैं, सो उसमें हर डोमेन से एक पर्सनालिटी है, एक डाइवर्स डोमेन है जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आजकल हर एक इंडस्ट्री में हर जगह AI यूज हो रही है। लाइक हमने रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी का मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें स्पैम डिटेक्शन की, उसके जो हमारे पास ईमेल्स आती हैं वो स्पैम में
सो उसमें हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो इम्प्लीमेंट की और उसके थ्रू हमने ये डिटेक्ट किया कि कौन सी ईमेल जो है वो स्पैम है और कौन सी हैक है। इसी तरह से रिसेंटली मैंने अपनी थीसिस की है, रिसर्च की है, उसमें हमने इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मुझे हम लोगों ने डाउनस्ट्रीम टास्क जो है लाइक स्टूडेंट्स पेपर इवैल्यूएशन, आंसर स्क्रिप्ट इवैल्यूएशन थी हमारे टास्क और उसमें बहुत सारा काम 1960 से होता आ रहा है। सो उसको फर्दर रिफाइन और इम्प्रोवाइज करने के लिए उसकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को प्रिसाइज करने के लिए और रिवाइज करने के लिए हम लोगों ने हमारी ऑब्जेक्टिव था और इसके लिए मैंने फर्दर जो रीसेंट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल से लाइक LLMs जिनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहा जाता है, सही है, जो लैंग्वेज बेस्ड भी होते हैं, आप विजन ट्रांसफॉर्मर्स भी यूज करें, ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है इसका और ये बहुत एक्यूरेट है और आजकल जो है आप जहाँ जैसे देखते हैं चैट जीपीटी है या कोई जनरेटिव एआई है, सो उसमें आप देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर ही है या न्यूरल नेटवर्क ही है जो काम कर रहा है लाइक चैट जीपीटी। सो ये मैंने इसी तरह से चैट जीपीटी एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर है। मैंने जो आर्किटेक्चर यूज किया वर्ड और डिजिटल वर्ड था जो कि वर्ड के वेरिएंट्स हैं। सो उनके थ्रू मैंने जो है हमारा मॉडल बनाया, 2 मॉडल्स बनाए थे जो ये डिटेक्ट करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो मॉडल आंसर है या रेफरेंस आंसर है और उसके अलावा जो स्टूडेंट आंसर है, सो वो स्टूडेंट आंसर रेफरेंस आंसर की बेसिस पे जो है उसको ग्रेड करेगा हमारा मॉडल कि उसकी क्या मार्क्स मिलने चाहिए सब आंसर। सो इस पे मैंने काम किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, अंडर वाटर ट्रैश डिटेक्शन, इसके ऊपर मैंने काम किया था कि अंडर वाटर जो ट्रैश है गार्बेज है वो उसको डिटेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूरोनी ये अप्लाई किया था। इसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, ये रूल बेस्ड सिस्टम्स भी हमें कहा जाता है। सो जब हम उनकी बात करते हैं तो ये किसी एक्सपर्ट के थ्रू जो है वो हम नॉलेज लेते हैं जिसके वजह से हम जिसके थ्रू हम रूल्स क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली उन रूल्स के थ्रू हम जो है वो आगे कोई जो है जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी बहुत एप्लीकेशंस है लाइक लॉ और डॉक्यूमेंट्स में आप बात करते हैं या हेल्थ केयर में बहुत है, किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस करवाना है, सो उसके लिए जो है वो हम एक्सपर्ट सिस्टम यूज करते हैं। आजकल बिजनेसेस में आज भी जो है एक्सपर्ट सिस्टम यूज होते हैं। सो ये एक्सपर्ट सिस्टम एक मैंने डिजाइन किया था जिसमें हम स्टूडेंट्स को काउंसिल करते हैं कि उनको क्या डिग्री परस्यू करनी चाहिए बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। इसके अलावा पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज में मैंने डीप न्यूरल नेटवर्क्स के 2 मॉडल्स बनाए थे 16 और रेस्टोरेंट के आर्किटेक्चर में यूज किया था। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स जिसमें पाकिस्तान साइन लैंग्वेज जो है जो उसको डिटेक्ट किया जाएगा, उसको क्लासिफाई किया जाएगा। सो एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरी इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड हो लाइक म्यूजिक है या डिजाइन है। सो एआई जो है वो हर चीज में उसने लीड ली। सो आपको पता है 97% ऑफ द बिजनेस जो बिजनेसेस हैं वो एआई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। सो हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उस क्रॉस रोड पे इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमें जहाँ इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जो है वो पूरी दुनिया को जो है रीडिफाइन कर रही है। सही है, पूरी दुनिया को रीडिफाइन कर रही है और इस वक्त हम
मनी लगा है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज जो हैं वो AI सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे पूरी AI पूरी सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। उसके अलावा जो है और इंडिविजुअल्स जो हैं सारे जितने भी लोग हैं वो अपना कैरियर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टुवर्ड्स AI because it is a need, it is not an option, it's essential. So हम लोगों ने AI स्टेट आइडिया अकेडमी के साथ जो है वो एक कोर्स डिजाइन किया है जो है AI फॉर बिगनर्स लेवल। इस कोर्स में बेसिकली हम जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को AI के पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्लासिकल AI के और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स हम लोग जहाँ भी देखते हैं आपको कोर्स ऑफर हो रहे होते हैं वहाँ पे सिर्फ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात होती है, जनरेटिव AI जो कि एक AI के सब डोमेन सही। क्लासिकल AI के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन हमारी जो कोर AI है वो बेसिकली क्लासिकल AI है। जैसे मैंने आपसे बात की एक्सपर्ट सिस्टम की, नॉलेज बेस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। सो दिस इज द कोर AI जिसमें AI के एल्गोरिथम्स हैं ऐसे जो कोर AI एल्गोरिथम्स हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। सो ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है इसमें हम क्लासिकल AI और मशीन लर्निंग दोनों के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह मशीन लर्निंग का एक और कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे जिसमें हम डिटेल में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को पढ़ सकेंगे। सो आप लोगों से यही कहना है कि अपने फ्यूचर ट्रांसफॉर्म करें, अपने फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करें AI की तरफ, क्योंकि ये जो है ये AI के साथ ये इट्स फ्यूचर, इट्स योर फ्यूचर। आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है वो जब भी हो सकती है जब आप AI में अपने करियर्स को ट्रांसफॉर्म करें। आपका कोई भी कैरियर, आपकी कोई भी डोमेन है, कोई भी डिसिप्लिन है, उसको आप AI के साथ अलाइन करें बिकॉज़ AI इज एवरीवेयर। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। Thank you so much, Ms. Nadia, for your kind words. One request to all the audience, लेकिन हम यहाँ पर सारे मौजूद हैं, तो it's a humble request, जब तक हम मौजूद हैं, it's a great opportunity for us, for all of us, कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री के giants और gurus मौजूद हैं, and their words are a lot precious than the time you are spending on talking to each other. So I would humbly request everyone कि हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे सुने। Definitely there is a lot to learn for each and everyone, including me. So moving on to the program, we are fortunate to have Mr. Fahad Ahmed Khan, a senior consultant at Trend Micro and founder of Cyber, will now deliver a keynote on cloud cyber security. Further, before doing that, I would request, there are some prizes that need to be delivered, and I would request the students of awards for matric inter students who are taking training from Shadil IT Academy with the title Future Cloud Leaders Recognition. I would request one by one students to come on stage and receive their awards. The first one is Vanya Shahzad from AWS Batch 54. A huge round of applause for her. Definitely, मैं भी एक graduate हूँ और तकरीबन कुछ साल का experience है, but learning AWS at the age of school and intermediate is still a remarkable thing. So a huge round of applause for her. Next we have Shahnur and Nadeem. Inshallah, we will be calling Ahmad Nadeem later on. Known as students who have become our employees and trainer title, the Skill Transformer Award. And the award goes to Gul Fatima, who is an office employee
A huge round of applause for her. Good Fatima. Next, we have a very talented अच्छा मेरे अवार्ड और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया है। सबसे पहले तो मेरे भाई मौजूद हैं, फराज भाई आपकी, और उसके बाद उस्मान भाई हैं, और थर्ड वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अनिल भाई। कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज? ही इज माय टीचर, माय इंस्पिरेशन, जिन्होंने हमेशा मुझको कॉन्फिडेंस रखा, बिलीव रखा, इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरे। साथी जरूरत पड़ती है and encouraging them at the same time. Actually, the trainer of the year 2024, and this would be like one and only Noshirwan Khan Adil, who is an AWS trainer of the year 2024. So, Mr. Fahad, who will give insights on his experience, and he will deliver the beautiful thoughts what he has to say. He's, just to remind you, he's a senior consultant at Trend Micro and founder of Cyber, who will now deliver the keynote on cloud cyber security. I would like to applause please. अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उस्मान भाई का और शेरडी लाइब्रेरी अकेडमी का कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया और आप लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये आपका प्रोग्राम है, तो आपके अपने लिए तालियां होनी चाहिए। और उस्मान भाई के लिए उन्होंने इतना अच्छा आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की चीजें डेवलप की जाती हैं। तो मैं थैंक यू करूँगा शेरडी लाइब्रेरी अकेडमी का और उस्मान भाई का, मेरी पूरी टीम का। तो माशाल्लाह इन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की है, उस जर्नी को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे ये अब आपको खुद बताना है कि आपकी मेहनत उसका वो बोलना सबूत है। तो यहाँ मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं होगा, उस्मान भाई का मैं थैंक यू करूँगा अगेन अगेन कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में एक क्लाउड का रेवोल्यूशन जनरेट किया है, डेवलप किया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्लाउड की अगर किसी ने बुनियाद डाली है या वो क्लाउड का कोई बिजनेस या एजुकेशन या क्लाउड का कोई नुक्ता अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर किया है तो वो मोहम्मद उस्मान खान है। और उस्मान खान के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो यहाँ सीनियर लोग हैं कि वो एक जो ऊपर का जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री लेवल के ऊपर और एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि हम दोनों सेगमेंट्स में काम कर रहे होते हैं, हम ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं और ऐसे लोगों के काम की रिकग्नाइजेशन करवाएं। मेरे पास खुद एक सिक्योरिटी का डोमेन है और उस सिक्योरिटी के डोमेन में मैं अगर बात करूं कि ये बात नहीं है कि उस्मान भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है और स्पेशली मैं सिर्फ क्लाउड की बात करूं कि ये बहुत ज्यादती होगी, ऐसा नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी जॉब है पाकिस्तान के अंदर और हमारी रिपोर्टिंग है यूएस के अंदर। तो ट्रेंड माइक्रो इज वन ऑफ द ग्लोबल टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी कंपनी एंड आई एम वर्किंग हियर इन पाकिस्तान एंड सर्विंग ओवर हियर फॉर पाकिस्तान कस्टमर। सिक्योरिटी के अंदर कोविड के बाद से जो रेवोल्यूशन आया है और जो चेंज आया है वो चेंज 360 चला गया। हम बार-बार क्लाउड की बात कर रहे हैं, हम बार-बार क्लाउड 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 ये क्या है, क्लाउड एक बज़वर्ड बन चुका है। और अब सिक्योरिटी में 100% आपकी जो सिक्योरिटी है, क्योंकि जो हालात आपके पास है यहाँ पे आपको दुनिया से काट दिया जाता है, इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और इंटरनेट का जो मेन असल मसरफ है उसको जीरो कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जितने लोग हैं या जितने यहाँ पर एनवायरनमेंट है उस काम के लिए क्लाउड एक ऐसी मैंडेटरी चीज बन गई है कि उसमें तमाम सॉल्यूशंस आपको क्लाउड में मिल रहे हैं। इवन हम अगर जो अपनी रिसोर्स हायर कर रहे हैं या देख रहे हैं
अब उसके अंदर जेडी में एक मैंडेटरी पार्ट है कि क्लाउड का एक्सपीरियंस या क्लाउड का आपके पास एक नोड होना मैंडेटरी है। अब वो क्लाउड में मुख्तलिफ फ्लेवर्स आपके पास मौजूद है, AWS है आपके पास, गूगल है आपके पास, अलीबाबा है आपके पास और मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। मैं आपसे छोटी सी बात करूंगा कि 100% सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेशन, डिग्रेडेशन और नेगेटिविटी के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। मैं आपसे ऑन स्टेज बात कर रहा हूँ कि अपने अंदर से दो चीजें पहले तय कर लें, अपने अंदर से डर निकाल लें कि यार मेरा बॉस, मेरी कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी जॉब खा लेगी है, मेरी जॉब से निकाल देंगे। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी में इतना दम नहीं है कि आपका रोजगार छीन ले। जिसने पैदा किया है उसने लिख के भेजा है कि इस पूरे अरसे में, इस पूरे टेन्योर में आप बताते सब अपने होठों आवाज में दिल पे आप रखे कि आज की तारीख तक, आज दोपहर तक क्या आप भूखे सोए या भूखे रहे आप या आपको खाना नहीं मिला? ये सबसे बड़ा सवाल है, अपने आप से कीजिए। दूसरा, डर निकालें अपने अंदर से। जिंदगी में जब तक रिस्क नहीं लेंगे और कोई डिसीजन नहीं लेंगे उस वक्त तक कभी भी नहीं आएंगे। मैंने कभी जिंदगी में क्लाउड नहीं पढ़ा था, वो ये शख्स है जो सामने बैठा है जिसको देख के क्लाउड पढ़ना शुरू किया है। और मैं प्राउडली कहता हूँ कि इन्होंने, उस्मान भाई ने जो बुनियाद डाली है वो बुनियाद पाकिस्तान का एक पिलर है। बहुत सारे लोग अपनी जॉब को लेकर डरते हैं कि मैंने क्लाउड पढ़ा तो मेरी फलानी जॉब चली जाएगी, मेरी स्किल्स बढ़ जाएगी या मुझे ये चीज नहीं आएगी। ये एक नया साइबर सिक्योरिटी में लैंडस्केप डेवलप हुआ है क्लाउड का, क्लाउड लैंडस्केप। क्लाउड में मैं अगर सिक्योरिटी की सिर्फ चंद चीजें बातें करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात मैटर करूंगा क्योंकि और भी लोग हैं, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे सिर्फ चंद बातें करता हूं एज अ सिक्योरिटी कंसल्टेंट। हम अगर पाकिस्तान में अगर क्लाउड पेन टेस्टर देखते हैं तो पाकिस्तान में कोई कंपनी क्लाउड पेन टेस्टिंग सर्विसेज नहीं देती। कोई देखिए तो जरा बता दें, पेन टेस्ट करते हैं माशाल्लाह चैंपियंस बैठे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के कि क्लाउड का कोई पेन टेस्ट पाकिस्तान में लोकल कोई है, कोई दे रहा है? जी सर है। ये एक पार्ट है, ऐसे 10 पार्ट मैं आपको गिनवा सकता हूँ। मुझे ब्लू टीमिंग करवाने क्लाउड की नो सर्विस, मुझे रेड टीमिंग करवाने क्लाउड की सर्विस नो एक्सपर्टीज ओवर हियर। हम कहां देखते हैं? हम अपने प्यारे दोस्त यूएस की तरफ देखते हैं या हम अपने प्यारे दोस्त चाइना की तरफ देखते हैं। अब हम दोनों को लाते हैं, दोनों पट्टे में आ जाते हैं। गवर्नमेंट कहती है ये अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट कहती है वो अलाउ है। इसके पास लाइसेंस है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। ये सारी सर्विसेज हम किनसे बोरो कर रहे हैं? हम अपने बाहर वालों से बोरो कर रहे हैं। जिस डोमेन का अभी एबीसी भी पाकिस्तान में नहीं आया है। मैं अगर 100 की बात करता हूँ, 100% जितने ग्लोबल 100 हैं वो सब 100% क्लाउड पे चल रहे हैं, क्लाउड पे सर्विसेज हैं, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लाउड एक समंदर है। जिस तरह आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें पढ़ी हैं, देखी है, फिर वो माइग्रेट हुआ वीएम के ऊपर, अब वीएम माइग्रेट हो गया है आपका क्लाउड पर। क्लाउड भी नेक्स्ट लेवल पे अब जो जा रहा है वो फाइल लेस सर्वर के ऊपर सॉल्यूशन पे अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। मैं अगर 2030 की बात कर रहा हूँ, जिस तरह फराज भाई ने, उस्मान भाई ने, बशीर भाई ने यहाँ पे जो बात की, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है अब फाइल लेस एनवायरनमेंट पे आ रही है। मैं आपसे आखिर में एक बात सिंपल करूंगा, पाकिस्तान में हमारे पास बेतहाशा जॉब्स हैं, बेतहाशा, जो लोगों के साथ नेगेटिविटी आपके साथ दरमियान में शामिल है। खुदारा उन लोगों के साथ सबसे पहले बैठना छोड़िए, उनके साथ रिलेशन छोड़िए, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अजीज हो, कोई भी हो। नेगेटिव बंदे के साथ अपना रिलेशन हटाइए और जो पॉजिटिविटी आपको दिखा रहा है, बता रहा है, आप उसके साथ बैठिए। और मेहनत सबसे बेस्ट पार्ट है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, क्या उस्मान भाई बचपन से क्लाउड सीख के आए थे या हम बचपन से टेक्निकल ट्रेनिंग सीख के आए थे? हमने देख के लर्निंग स्टार्ट की। आज जो आप जर्नी देख रहे हैं ये 7 सालों से शेयर नहीं किए, उससे पहले की क्या जर्नी है उसका एक्सपीरियंस आपके सामने मौजूद है। टोटल मैं कहूँ 15 से 20 साल की जर्नी है इस पूरे क्लाउड की। अगर आप देख रहे हैं
तो ये 2 मिनट में या 5 मिनट में 6 महीने में साल में आप क्लाउड के आप बादशाह नहीं बन सकते। आज से आप तारीफ करें और आज जनवरी आपका साल का पहला साल है। आप अपने साल पूरे साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड कीजिए और क्लाउड के 4 कोर्सेज इन 4 क्वार्टर के अंदर आप तारीफ करेंगे। दिसंबर 31 में मैं अपने आप को खुद संभालूंगा और देखूंगा क्लाउड कितना मैंने सीखा, कितना मुझे आता है, कितना मुझे नहीं आता। हर क्वार्टर में अपना एनालिसिस कीजिए लर्निंग का, अपॉर्चुनिटी का, ग्रोथ का कि मेरी ग्रोथ कहां जा रही है। देखिए भाई, जिस तरह ग्रोथ आपकी बढ़ेगी ना उसी तरह आपकी सैलरी में जीरो भी बढ़ेगी और जितनी स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी उतना एक्सपीरियंस, उतनी एक्सपर्टीज आती चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान में रहते हुए मैं सिंगापुर को सर्व कर रहा हूं और यूएस को सर्व कर रहा हूं। हमें जाने की जरूरत नहीं है, यही जो यूएस में लोग कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कमा रहे हैं। तो जो एक नेगेटिविटी का एक पार्ट क्रिएट और डेवलप कर दिया है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मैं आपसे क्लियर कट बात बता रहा हूँ। ऊपर की 2 इयर्स बिल्कुल स्वैप हो चुकी है। देयर इज नो सीनियर पर्सन इन द इंडस्ट्री। 3, 4, 5 लाख रुपए की नॉर्मल जॉब है, किसी भी सेगमेंट में चले जाए, पर स्किल्स डेवलपमेंट जब तक नहीं होगी, स्किल्स का पार्ट नहीं होगा और अपने अंदर का डर खौफ नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं आगे अपने कैरियर को कैसे ग्रो करूंगा, कैसे लेके जाऊं। इसी क्लाउड के अंदर आपके पास सिक्योरिटी का पार्ट है, इसी क्लाउड के अंदर आपके पास कंप्यूटिंग का पार्ट है, इसी क्लाउड के अंदर आपके पास इंफ्रा का पार्ट है। आप जिस फील्ड में सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें उतरे और अपने कैरियर को ग्रो कर लें। सिक्योरिटी के अंदर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आई एम 100% अवेलेबल विद शेयरिंग IT अकेडमी। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने अपने रिसेंटली अपना स्टार्टअप डेवलप किया जिसमें मेरे मेंटर काजी नवाज मुजाहिद भाई हैं, मेरे मेंटर हैं, उस्ताद हैं, बड़े भाइयों से बढ़कर हैं जिनकी मेहनत से ये स्टार्टअप डेवलप किया। साइबर सिक्योरिटी का स्टार्टअप है पड़ो साइबर, जिसमें हमने 100% बेसिक फंडामेंटल इंटरमीडिएट सिक्योरिटी की ट्रेनिंग 100% फ्री लगी है और एडवांस के अंदर हमारा सर्टिफिकेट बेस्ड मॉडल है। तो कोई अगर लर्न करना चाहता है उसमें क्लाउड का भी पार्ट है, सिक्योरिटी का भी पार्ट है, इंफ्रा का भी पार्ट है। तो जिस पार्ट के अंदर आप ऐड होना चाहते हैं, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका विजन है, आप आए इसमें कोलैबोरेट करें। लर्न करना चाहते हैं, हम और उस्मान भाई आपके साथ शामिल हैं और जो लर्न करना चाहता है हम आपको उसी तरह सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। बेशक कतरा कतरा दरिया बनता है और हमें आज से अज़म करना चाहिए कि हम इनोवेशन की तरफ जाएं और अपने आप को एक बड़ी इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्विज की तरफ। कैन यू मूव टुवर्ड क्विज? ठीक है, तो क्विज के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमने प्रिपेयर किए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट only the students or the ones who have actually conducted classes from Shady Light Academy gives the answers and we have some small prizes as well for that. तो जिनको आता हो या तो मैं आगे आ जाऊँ, जितना मैं आ सकता हूँ I will try. तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल है ये इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, I am expecting शायद ये भी देने। तो even though questions are just from helping from ChatGPT and everything, but let's try. तो पहला सवाल है, which AWS service provides a free managed extract transform load capacity? वो कौन सी सर्विस है जो को फ्री मैनेज सर्विस है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड कैपेसिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है? आई गिव यू ऑप्शंस एज वेल. It is it Glue, is it data pipeline, is it EMR, is it Redshift? कोई बताना चाहेगा प्लीज? AWS Glue बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई न्यू फैमिली है शेयर जाएगी एंड आल्सो गिविंग है। मूविंग ऑन, so what is the main difference? Let's make it a little bit easier. What's the main difference between S3 standard and S3 glacier? तो कौन बताना चाहेगा S3 standard and S3 glacier का difference? कोई बताना चाहेगा? Students obviously अगर बोलते हैं option obviously. S3 glacier is used for faster storage. S3 glacier is optimized for infrequent access. S3 standard is cheaper than S3 glacier. S3 standard supports archival support only. Which one is the option? बताना चाहेंगे जी?
option A नहीं S3 connection used for faster storage नहीं S3 connection is optimized for infrequent access ये बिल्कुल सही जवाब ऐसे ही पता चलता है कि ये जो मेंटोर है टीचर है वो अच्छा ट्रेन किया है ऑब्वियसली इट्स अ टू वे लर्निंग अगर स्टूडेंट करते हैं तो आगे opportunity moving on to the third question I try to make it a little bit harder this is related to DevOps तो अगर कोई DevOps वाले हैं तो प्लीज जरा बताइएगा which of the following is not a container orchestration tool इसमें से कौन सा container orchestration tool नहीं है Docker Swarm Kubernetes Ansible Apache uses इसमें से कौन सा orchestration tool नहीं है container orchestration tool Docker Swarm Kubernetes Ansible no Apache options Ansible अगर वो सही है हमारे कॉन्टेंट ये सबसे पहले नहीं बोले तो इनको ही नाम दे देते हैं कार्य होने के लिए नाम भी होता है IT स्टूडेंट ठीक है आगे कंटिन्यू करें चलो ठीक है थैंक यू सो मच इट वाज अ शॉर्ट fun part of the okay so our next speaker needs no introduction our visionary entrepreneur Mr. Qazi Noman Mujahid is the CEO of Digitech Infra Private Limited and Cybersecure 11 Private Limited. His journey of resilience and leadership is a source of inspiration for many. Let's welcome him for a motivational speech. But before that, I would request Mr. Noman to give the awards to the remaining students as well as suggested as instructed by Sir Usman. Moving on. So the Excellency Award list candidate who nominate their resolves themselves for awards. The first award goes to Mr. Bashir Ahmed Zishan for the title of Cloud and DevOps Vanguard Award for leading leaders pushing boundaries in cloud and DevOps. Next, for the same Excellency Award list, covering diverse tech domains. A huge round of applause, please. Sir, Mr. Qazi Noman Mujahid, the CEO of Digitech Infra Private Limited and Cybersecure 11 Private Limited, I would like to request with a huge round of applause for everyone that they will share some motivational speech. Jazakallah, and we humbly oblige Mr. Usman for inviting me to be here. थोड़ी ज़्यादा बात नहीं है इसको लेकिन एहसास है बहुत दिल से बात करती है जब अपने दोस्तों को साथ में जब देखते हैं दूसरा पूरी खिदमत कर रहे हैं खासतौर पे शेड लाइन की मैं चाहूँगा कि देश की ह्यूज रॉड अक्रॉस फॉर शेड लाइन की इसके अपने साथ प्रोग्रेस किए हैं और अपने लिए तो सब मेहनत करते हैं अपने लिए सभी मेहनत करते हैं लेकिन वो लोग जो कि इस मुल्क के लिए इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है फ्यूचर है यूथ उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो Usman is one of them who is actually applying his efforts to make our youth skilled, to make them capable. इशू क्या है असल प्रॉब्लम क्या है अगर हम बात करते हैं आज से 20 साल पहले जब मैं प्रोफेशनल कैरियर में आया तब ये इतनी जॉब्स नहीं आज भी यही याद है कि जॉब्स नहीं मेरे भी एम्प्लॉयर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मेरे पास कुछ साथ में चीजें पिछले 1 साल से मुझे उनके लिए पता नहीं इसलिए प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है स्किल में ठीक है अब स्किल होने के क्या चाहिए होगा क्या करना स्किल होने के लिए अनफॉर्चुनेटली आप जो एकेडमिक लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे काम हो रहा है उसमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो अगर मैं कुछ स्लैंग में एक्सप्लेन करूं तो शायद एक कश्ती में बैठ के और स्विमिंग सीख जाना ठीक है
लेकिन शेयर राइट टाइम भी और इस तरह की जो दूसरी कंपनीज मुल्क में चल रही है उनमें क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर जी एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, यानी कि आप दरिया में गिराकर और सीखो, ठीक है। सो ऐसी एफर्ट्स हैं जो जैसा काम कर रहे हैं वो लोग और हमारे स्टूडेंट्स को तो यकीनन इस बात को जरूर रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने जिन्होंने ऐसा पढ़ा है जो ग्रेजुएट हो गए या होने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह कल का दुआ जो है वो बीए में बनवाएंगे क्योंकि मतलब जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक्सपोजर मिल रहा है वो उसके जरिए कुछ हो सकेंगे। दूसरी खास बात है वो ये कि ट्रेनिंग कौन सी की है, स्किल किस चीज में बना है, कंप्यूटर, आईटी, डेटा साइंस, एआई, सारी बातें तो हम कर रहे हैं। इसमें से वो कौन सी चीजें जिस तरह हम जाएंगे हमारा फ्यूचर ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि हमारा लाइफ का गोल अचीव हो जाएगी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वो इस वक्त एक समझ कि वो रास्ता है जिसको आप मैप कर लेते हैं, उसमें मैं आपको स्किल बना लेते हैं दैट्स फ्यूचर श्योर्स। सो और उसमें क्लाउड इज वन ऑफ देम। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से बात करते हैं ना, एआई, आईओटी, रोबोटिक्स की बात हो रही है, कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, बट क्लाउड इज वन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी जिसमें अगर आप अपना फ्यूचर ग्रो करते हैं द फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। सो वैसे ही मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना डिग्री की जरूरत है। हम सर्विस कम्युनिटी ट्राई कर हम लोग एचआईवी के अलावा हासिल करेंगे, ठीक है ना। सो डिग्री से बड़ा बात है साइड पर है जो विभाग की नोटिस बात की, आपसे डिग्री की बात कर रहे हैं उसकी प्रोजेक्ट मैं थोड़ी सी अपना लाइफ में मतलब मेरा ताल्लुक हैदराबाद के शीतों वाले घर से, जहाँ पर दोपहर की गर्मी में हम कमरे में नहीं सो सकते थे और वाला हमने किसी गेम ली थी। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल विलेज में पढ़ा हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह नासिर जी ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, बल्कि मैं नेशनल यूथ का मेंबर हूँ, मैं किसी से 5 कमेटी से मेंबर हूँ, मैं पाशा यूनिवर्सिटी में कमेटी का मेंबर हूँ, मैं 7 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बोर्ड का मेंबर हूँ, हैविंग डिलीवर्ड फर्स्ट वर्चुअल हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड की मेरे पास। तो क्या जब मैं दुनिया में आया था तो क्या मैं ये तमाम डिग्रीज या ये तमाम ये नोट्स स्टडीज लेके आया था? नहीं। एक अप्रोच अपने अंदर जो वो आज अपने अंदर बिल्ड कर लिया वो ये कि अगर सामने वाला ये कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता। अगर काजी रोमानी की चीज की है तो वो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं काजी रोमान फिजिक क्यों नहीं कर सकता। आज से अपने अंदर जो है ये वाली एक सोच डेवलप है। हाँ, उसके लिए हमें चाहिए क्या? किसी को डिफीट करने के लिए, किसी से आगे बढ़ने के लिए आपने करना है, आपने उसको जब से स्टडी करना है। आप कहीं अपना फ्यूचर गोल किसी चीज में बनना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन पे उन लोगों को फॉलो कीजिए और देखिए कि उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कौन सी सर्टिफिकेशंस की और कितना की चेकलिस्ट बनाई। आज में एक प्रॉब्लम होती है कि आप कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो नहीं कहते हैं कि आप जवाब ही नहीं, इसलिए क्या कहते हैं कि 100 जॉब अप्लाई करें। अगर मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट हूँ और मुझे कहीं सी लिखना आता है फॉर जॉब अप्लाई, जितनी ज्यादा जॉब अप्लाई करेंगे उसमें चांस ये है कि वो जॉब से रिलेवेंट नहीं होगी, और जब आपसे रिलेवेंट नहीं होगी तो क्या उसको जवाब आएगा? नहीं आएगा। तो इससे मायूसी बढ़ेगी। कम जगह पर अप्लाई करें, लेकिन उस जगह अप्लाई करें जहाँ आप डिजर्व हो, जहाँ पे आप जेडी को मीट करते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते हैं तो भी हिम्मत मत हारिए, मायूस ना हो। अपने पास एक चेकलिस्ट बनाइए, जॉब्स को देखिए, तमाम जॉब्स को देखिए, जॉब पोस्ट को जरूर देखिए, लेकिन अपने पास एक चेकलिस्ट बनाइए कि जो मेरा फ्यूचर गोल है, मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये चीज मेरे पास है, ग्रेजुएशन मेरे पास है, इंग्लिश हर चीज मिल जाती है, अच्छा ये चीज मुझे नहीं आती, उसके पीछे लगता है ये चीज जो चीज मुझे नहीं आती, इसको मीट करने के लिए अपने लिए टारगेट सेट कीजिए कि अगले 6 महीने में ये तमाम चीजें अपने अंदर पैदा कर लूंगा या मैं इसमें रेगुलर रहूंगा और फिर कुछ हासिल करूंगा। यकीन मानिए कि अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप हुनरमंद हैं, तो आप आगे बढ़ने से कोई नहीं हो सकता। सो यहाँ पे बात करते हैं कि आज से नहीं बल्कि अभी से नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल के लिए, और ये पाकिस्तान ये एक ऐसी जगह है, ये फैमिली यूज है, लेकिन इंसिस्टिंग है कि वहाँ आ जाओ और हमारी यूट्यूब बिजनेस स्टार्ट करनी है। यकीन मानिए आज तक आप विजिट करेंगे, ठीक है। जो लोग आज जा रहे हैं
आज अभी स्टूडेंट है, हजारों लाखों लोग जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, आज उनमें से चंद लोगों के नाम भी है। और शायद एक साल बाद आपसे पूछिएगा ये फैसला कैसा था, अगर वो सबको ना पूछे तो क्या नाम है। अच्छा, लोग कहते हैं कि इंसान गिरने नहीं चलना सीखता है। मैंने सोचा कि गिरना जरूरी है, सामने वाले को गिरना देखे कैसे का रास्ता तो दूसरों के तजर्बे से सीखे, ठीक है। दूसरे लोगों को सिर्फ ये मत सोचे कि पाकिस्तान बुराई में जगह है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, वो एक यूट्यूबर है उसने बोला कि जनाब एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लड़का 7 साल पहले आया था बिल्डिंग का मालिक है, निकलो हमारा पाकिस्तान से निकलो। यहाँ तक तो मैं 100 बार उसकी बात नहीं छेड़ी, लेकिन क्या किसी ने बहुत किया कि वो यूट्यूबर आते थे यूट्यूब की वीडियो जो हमारे जगह भेज रहे क्या वो मेरे चला गया नहीं। तो जब भी कोई आपको इस तरह की बातें बताता है, जब भी कोई आपको इस तरह की रील्स दिखाता है, तो उसको आधा दिल पूरा सोचिए। मैंने स्टडी किया कि आप पीटीआर में कमाते हैं, पीटीआर में कर सकते हैं, आप रेडी हो गए, आप लेकर चले जाते हैं, आप यूएसडी में कमाते हैं, यूएसडी में कर सकते हैं, आप रेडी हो गए। देखिए लोग की जगह आप क्रेडिट कार्ड चेक करें, इंडिया में भी दोनों जॉब कर रहे हो और फिर भी अपने बैंक की जो इंस्टॉलमेंट सब भर रहे हो। मैंने क्या किया, मैं यूएसडी में कमाता हूँ, ठीक है। तो दिस इज लोगों को स्टडी करें, चीजों को जरूर सुने, जो गलत चीजों को ध्यान से सुने, दहली से निकालें, दूसरे काम से नहीं, क्योंकि दूसरे काम की चीजें से तुमसे को दिमाग से उड़ाना पड़ेगा। ध्यान से बात को, गलत बात को, नेगेटिव को यहाँ से सुनोगे यही से वो बात क्योंकि देखिए जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, जब हम नेगेटिविटी को सुनते हैं, तो ये एक मेथड बताता है कि हमारे दिमाग में ऐसे फ्यूज खाली होते हैं जो हमें सेटिंग यूज करते हैं। जब हम क्रिएटिविटी की कामयाबी की बातें सुनते हैं, करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसे फ्यूज जनरेट होते हैं जो हमारी सेहत की बहुत अहम। मैं टॉक शो देखता था 2017 में, टॉक शो देखता था, ऐसा लगता था कि कराची आज का पाकिस्तान का मुझे बना मैंने टीवी खत्म कर दिया। यकीन वाला ऐसा लगा कि आज किसी चल रहा है, आप सभी ने चला लीड, ठीक है। अपने अपना जिंदगी का एक फ्यूचर का एक गोल बनाए, उस गोल को अच्छी तरह हाथ देने में कोई पैसा नहीं, हाथ देके बड़ा काम देके उसको शॉर्ट टर्म माइलस्टोन में ब्रेक करें और उसके बाद उस फ्यूचर गोल को हासिल करने की कोशिश करें। अपनी डिक्शनरी में से, अपनी किताब में से, अपने दिमाग में से एक पॉसिबल कलम सिखाएं, ठीक है। एंड we all have vast form of money. What is it? Anyone? Right. Exactly. We have vast form of money that is time. आज खुदा सोशल मीडिया पे, टिकटॉक की वीडियोस पे और खास कर कोई होटल में कहना शुरू, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत जनता है, मैं क्या सुनता हूँ, मैं देखता हूँ कि सुबह 4:30 बजे हमारा यूथ, हमारा फ्यूचर कोई होटल में बैठा होता है और सवेरे जमात से जस्ट आधे घंटे आके लोगों के ग्रो कर रहे हैं और जिस वक्त देश घटना होता है हम सो रहे थे, जब हम सो रहे थे तो फिर होता है, ठीक है। मेरी पहली जॉब गवर्नमेंट जॉब थी जो मैंने ग्रेड 17 से छोड़ दी। मेरी सेम में मेरी जॉब 16 साल का करके ग्रेड 17 में गया, तो मुझे लगा वो कि हाँ जाने के लिए साइन करना होगी, अलग काम करना होगी, सो आई कुड नॉट गो। दूसरी खास बात ये थी कि ग्रेड 17 मिला तो मैंने कहीं ये ऐसे नहीं है, मैं बाल का शहीद होने लौट गया। So I got my job from grade 17 and I got in other national companies. And I got big names from Pakistan, which Academic Associates, Temples भी शामिल है। मेरा job was with Temples as a DevOps head, having Coca-Cola as my customer in 300 SMB, ठीक है। और वहाँ से जर्नी शुरू हुआ, फिर 2017 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे मैं पहला मुझे हासिल कर लिया। बताने का मकसद गाड़ी बनवाना नहीं, बताने का मकसद ये है कि हम किसी से कम नहीं हैं। पाकिस्तान ने बड़े-बड़े दोहरे नायाब बदल किए। आज भी आप ट्रांसफॉर्मर्स यूटिलिटी स्ट्रीट किसी को पता है किसने सुबह सुनी हो, उसके अंदर 3 ऐसे इंजीनियर मौजूद हैं जो ताल्लुक पाकिस्तान से। आज आप माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और जो बड़े-बड़े नाम हैं, उनकी सबको जाके चेक करें तो पाकिस्तानी मालूम होंगे। फिर क्या चीजें जो आगे बढ़ने शुरू होंगी, कामयाब वही होगा, कामयाब वही होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा। So don't be the follower. Try to become the brand man. ठीक है। जब आप ये देखें कि कामयाब के सारे लोग लाते नहीं,
कुछ खास लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा सोचने वाले कि इस भीड़ भाड़ से भाग निकल जाओ, कुछ और सोचो, ऐसा सोचने के बहुत कम लोग हैं। ठीक है, दो चीजें मैंने आखिरी बात करूंगा, दो चीजें मैंने आपके ख्याल में की। कामयाबी आपके ख्याल में नहीं, कामयाबी हमारे ख्याल में नहीं। अल्लाह ताला ने आपको दो चीजें दी हैं जो आपके ख्याल में आज से जो काम शुरू कर देगा, नियत और मेहनत। अच्छी नियत के साथ मेहनत करो, कामयाबी तक पहुंचो। और there is no force except Allah जो आपको फरमाने से रोक सकेगा नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। बड़ी अच्छी बात कही आपने कि अपने लिए तो सर्विस और उस्मान के लिए कि जीते हैं जहाँ में है जिंदगी का मकसद और के काम आना। So serving others is the humanity, and the thing which I really like a lot is don't be a follower, try to be a trendsetter. तो बेशक ये बात बिल्कुल सही कही, and we inshallah follow the same thing. Moving on, we have our guests, a list of guests, and I would request Sir Usman along with Ms. Mohammed Jibran, the company Disrupt Senior Manager Infrastructure Operations, to come on stage along with Farad Hussain, company Abundant Solution Private Limited, Designation Vice President of Infrastructure Services, Head of Infrastructure Services, and finally Qazi Mawan Mujahid, CEO Digitech Infra Private Limited, CEO CEO 11 Private Limited. On stage, Sir Usman will present the honorable trophy first. Award one by one to. Thank you so much, sir, for coming. A huge round of applause for sir. Next, we have Sir Mohammed Jibran, company Disrupt.com, Senior Manager Infrastructure Operations. Sir Usman will present the award. Thank you so much, sir, for coming as well. Sir Usman will present the award. अच्छा, हमारे पास 3 लकी ड्रॉ डिस्काउंट्स हैं। इसके अंदर हमने फर्स्ट वाले के लिए हमने रखा है 50% ऑफ है कोड रीडिंग स्पेस के ऊपर विद एनी पैकेज ऑफ 2 मंथ सब्सक्रिप्शन। क्योंकि कोड रीडिंग की कॉस्ट होगी, हमने 50% रिड्यूस की है। इसका फर्स्ट नेम आएगा और एल्बम गेट्स होती है। दूसरा जो है वो 30% डिस्काउंट है ऑफ एनी अपकमिंग बैच, जो कि हमारा नए बैचेस आ रहे हैं, उसमें किसी भी बैच में एनरोल होगी वो 30% का डिस्काउंट दे सकता है। तीसरा है कि बाय एनी कोई भी एक एलएमएस परचेज करने पर एक एलएमएस उसको फ्री मिलेगा लर्निंग पोर्टल पे, हमारे ई लर्निंग पोर्टल से। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहला नाम। अच्छा, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहला नाम है मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद कंप्लीट मैटर थे, तो किसी में भी नाम आ सकता है, कोई इसके अंदर नहीं है। Congratulations. Are you ready to do it online? दूसरा हमारे पास है 20% डिस्काउंट फॉर एनी अपकमिंग बैच। इसमें हमारे पास नाम आता है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन कभी जैसे आपको एक लर्निंग पोर्टल देते हैं और एक के साथ एक आपको फ्री मिलता है। हमारे लिए लर्निंग पोर्टल हमने गूगल ड्राइव में खत्म कर दिया। आप की लर्निंग पोर्टल को गूगल जो कि पाकिस्तान का पहला लर्निंग क्लाउड की लर्निंग पोर्टल है। तीसरा नाम है काशिफ हुसैन। He is Mohammed Ahmed Nabi, who is actually the matric intermediate student who are taking training from Shady Nigeria. So, coming at the end of the program, we have Hafiz Usman again for reminding us of the teachings and values of our Prophet, peace be upon him. It's a powerful role to play our event. So I would request Mr. Hafiz Muhammad Usman to come on stage and share the blessings of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in his speech.
والسلام على سيدنا المرسلين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انك كما اثنيت على نفسك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك وعبدك صلى الله عليه وسلم انت المستعان عليك البلاء ولا قوه الا بالله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا ارحم الراحمين. Members of Shade Light to join us on stage for the cake cutting ceremony.